Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, today I am going to introduce you a new skill subject for those students who are obtaining computer subject for their elective. Okay, so this subject name is information technology and the code is 802. Okay, so this PDF is for class 11th for session 2020 and 21. This is the revised syllabus introduced by CBSE and this is the official CBSE curriculum which you have to cover for 2020 and 21. Okay beta, here you can see this subject contain 100 marks, okay, in which you have to cover 60 marks for theory and 40 marks for practical. Okay, now next thing we are going to understand here. Now for the 60 marks you have to cover these chapters. Okay, so these chapter is divided further into two group, that is part A and the part B. Okay, now in the part A, name is employability skill. Okay, so which you have to cover this topic for the 10 marks. ओके बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं पूरा, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपको आएंगे कितने मार्क्स के आएंगे? 10 मार्क्स के आएंगे. ठीक है, तो लेट्स जल्दी से देख लेते हैं कि करिकुलम में कौन कौन से चैप्टर है. पहला है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, थर्ड वन इज आईसीटी स्किल, फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड फिफ्थ वन इज ग्रीन स्किल. बेटा ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट बी है, उसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के बारे में पढ़ना है. ठीक है, उसके अंदर यूनिट हमारे 1 से लेकर 5 तक यूनिट है, जो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क के बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में, ऑफिस ऑटोमेशन टूल जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है. नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस, जिसमें आरडीबीएमएस आपको पढ़ना है, एंड देन फंडामेंटल ऑफ जावा पढ़ना है. जावा यहाँ पे बेटा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आपको कवर करना है. और इस पार्ट बी से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इसका मतलब ये 50 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये दोनों मिलकर कितने हो गए बेटा? 60 मार्क्स हो गए. इसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करेंगे बेटा, तो जो हमको 40 मार्क्स का कंप्लीट करना है. तो 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा आपका ऑफिस ऑटोमेशन टूल से होगा, जावा प्रोग्राम से होगा और माइस्क्यूएल कमांड से होगा. ये आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहेंगे. सेम पार्ट डी में आप जब जाएंगे वहां पे प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा का यूज करके हम लोग 10 मार्क्स कंटेंट करेंगे. तो टोटल आपका ग्रैंड टोटल यहाँ पे कितना होता है? 100 मार्क्स का. ठीक है बेटा, तो ये करिकुलम है जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, या सीबीएसई के ऑफिशियल करिकुलम फॉर क्लास 11th के लिए है. ठीक है, ठीक इसी को कंटिन्यू किया जाएगा एज अ क्लास 12th में, सेम कंटेंट के साथ, विद न्यू टेक्नोलॉजी और विद न्यू स्पेसिफिक टॉपिक के साथ. ओके बेटा, नाउ so today I'm going to cover the first unit, and in this unit the communication skill will come. Okay, so today I'm going to explain you what actually communication skill is. Okay, so let's get started. Okay, now in employability skill you will get the first unit, unit 1, communication skill. Okay, communication skill. So this video is about those students who are not aware the communication skill or employability skill before. Okay, so this video is for those students also. Okay, so let's get started. So before to go ahead, let's understand what actually communication skill is. Okay, so student, as you know, the communication is mean to share our think, our ideas, our views to others, nothing else student. Okay, so don't be confused. Okay, so communication means to share your views, ideas, thoughts to others, nothing else. Okay, so let's get elaborate this topic ahead. Now here it is given, the communication skill are those skills which are needed to speak and write properly. Okay, so it is a what? It is a art of speaking. Okay,
So it is an art of speaking where you control your voice, you control your thoughts, you control your words, okay, phrases to speak, okay, or to share your knowledge or views to others, okay. So the communication is an art also. So here we will discuss a lot of things in of communication, okay. So to speaking someone's or to speaking in English, or if you want to share your knowledge, thoughts, views, ideas to other, so you have to uh, control your words also, okay. Now here, as a student you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. Speaking more than one language can help you to communicate well with people around the world. Yes, simple. जैसे अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है तो आप क्या अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ, आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू वीडियोस, okay, because I am not physically present in the school in front of you, that's why due to COVID-19 pandemic, so through videos or through online classes, okay, I am communicating with you to understand this topic, okay. अंडरस्टैंड बेटा कि आज की डेट में आपको मैं वीडियोस के थ्रू या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपके साथ क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आपको क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। So learning English can help you to communicate with people who understand English. Besides the language you have exposed to speaking and the language for easily in childhood. Simple. So यहाँ पे क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज, आप हिंदी लैंग्वेज और बहुत सारे आप जो रीजनल लैंग्वेज आप बोलते हैं, यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए। तो सिंपल कम्युनिकेशन चैप्टर में आपको सिर्फ समझना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस तरह से आप इसको अच्छा कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं। नाउ हियर इट इज रिटन, यू प्रोबेबली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम, ओके। जैसे कि हम कभी कभी क्लास में हम बोलते हैं, बच्चों को बताते हैं, you have to maintain your communication skill, because if you know the communication skill, if you know how to write, how to speak, okay, you will never face difficulties for public dealing, okay. Now everyone needs it and wants it, but what exactly communication actually hota kya hai? Let us try to understand. The word communication comes from the Latin word communicare, which means to share, ओके ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन कहां से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, ठीक है। सो नाउ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता क्या है, जब आप अपने व्यूज को दो या दो से ज्यादा तक पहुंचाते हैं, या फिर आप स्टूडेंट लाइफ में जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो, communication, it is called communication. Now here importance of communication, वहां पे क्या importance है, your ability to communicate clearly and share thoughts, feeling and ideas will help you in all your relationships. Simple. अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं, आप बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, ये आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, ये आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है लोगों के साथ। तो फॉर एग्जांपल यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन आल्सो इन्फ्लुएंस अदर थ्रू कम्युनिकेशन। सिंपल यहाँ पर क्या है, आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को आप शेयर करते हैं, जैसे कि आपको हो सकता है क्लास का टाइम टेबल हुआ एग्जाम का, तो जब आप जो स्टूडेंट एब्सेंट उसको आप शेयर करते हैं, वो क्या, वो इन्फॉर्मेशन हुआ। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन्फॉर्म का मतलब यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट और इन्फॉर्मेशन टू समवन। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन या फैक्ट किसी को प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू योर फ्रेंड, जब आप एक एग्जाम का टाइम टेबल अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। अब आता है इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ बुक और हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम एनी अदर रीजन। सो यहाँ पर क्या, आप जब आप इन्फ्लुएंस होते हैं,
या आप इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में या फिर आप क्लास में आप रिक्वेस्ट करते हैं टीचर को टू गो आउट फ्रॉम क्लास फॉर सम वर्क, ओके। Similarly, here you influence the teacher. Similarly, this is my communication process. यहाँ पे communication process में क्या है, where are you going? He is asking, okay, he is asking where are you going. So it is just giving information or asking something. So I am going home. So she replies, okay, she replies, I am going home. So receiving information, here it is giving information. He giving information to the girl and girl receiving the information and again goes to the giving the information to the boy also. This is a communication process, giving and receiving, okay. Now and last one is the next one is express feeling. Talking about your feelings is hardly way to express them, okay. For example, sharing your excitement about doing well in your examination और शेयरिंग योर फीलिंग विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड। यहाँ पर क्या करते हैं, आप एक्साइटमेंट शेयर करते हैं अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम, जैसे कि आपने यू गॉट 75% या यू गॉट 90% योर एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर एक्साइटेड एंड इन एक्साइटमेंट यू शेयर योर फीलिंग टू योर पेरेंट्स और योर फादर्स और समथिंग समवेयर एल्स, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस फीलिंग। अब बेटा हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एलिमेंट क्या हो सकते हैं किसी कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन मतलब क्या, आपके व्यूज को, आपके थॉट्स को हम दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं या आप कैसे पहुंचाएंगे। दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो आप लिखकर पहुंचाएंगे या तो आप बोल के पहुंचाएंगे। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये दो तरीका हो गया आपका आपके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। समटाइम्स इट्स रीडिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो, जैसे कि आप रेडियो या फिर न्यूज सुनते हैं, ठीक है, आप किताबें पढ़ते हैं, तो वहां से भी तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या मेजरली दो एलिमेंट हैं, एक है स्पीकिंग और एक है राइटिंग। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा है। वो सिंपल एग्जांपल क्या है, नाउ फर्स्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर, दिस इज द सेंडर। जैसे कि आपको किसी अपने फ्रेंड को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर। अब क्या चैनल, ये चैनल क्या होता है देखते हैं। अ सेंडर सेंड्स मैसेज, ओके, और समथिंग गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। सेंडर क्या हो सकता है, एक मैसेज देता है किसी को, रिसीवर को, और वो वहां पे कुछ बता सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है या फिर इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, ठीक है। अब चैनल क्या होगा, चैनल का मतलब क्या होगा, ये चैनल में भी फेस टू फेस चैनल हो सकता है, टॉकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप होता है, चैटिंग हो सकता है या फिर फोन कॉल के थ्रू भी है। तो यहाँ पे गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू चैनल, चैनल का मतलब क्या हुआ, द मीडियम। द मीडियम का मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ठीक, वॉइस कॉलिंग हो गई, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, या फिर फेस टू फेस आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन इट रिप्लाइज ऑल्सो, ठीक है, द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ओके, एंड रिप्लाई टू द सेंडर थ्रू डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब जब यहां से कोई क्वेश्चन गया रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। मे बी देखो, जैसे सपोज सेंडर ने इंग्लिश में कुछ इंफॉर्मेशन रिसीवर को दिया, अब रिसीवर को अगर इंग्लिश समझ में आती है तो क्या उसको डिकोड करेगी, नहीं तो किसी और के पास पूछेगी, पूछेगी कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर डिकोडिंग इट इज सेंडिंग टू द सेंडर, मींस, ठीक है, द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। यहाँ पर इस तरह का हमने देखा, एक इस फिगर में हमको समझ में आया कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बता पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव मतलब होता है बैरियर, ठीक है, बैरियर। वो बैरियर क्या है जिससे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। पर्सपेक्टिव मतलब बैरियर्स, ठीक है, वो बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यू और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, दीज समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, समटाइम्स पर्सपेक्टिव अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। तो वो बैरियर क्या है, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट, ओके, इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली, ठीक है, यू मे थिंक दे आर स्कोल्डिंग यू इवन दो दे आर पोलाइट। सब टाइम क्या होता है, जब आप एक स्कूल के अंदर जब कोई क्लास टीचर या फिर कोई सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो आप पहले से एक परसेप्शन बना लेते हैं कि वो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो
थ्रू दिस यू आर नॉट एबल टू आस्क समथिंग टू योर टीचर, ठीक है, वहां पे आप नहीं बोलते क्योंकि आप नहीं पूछते बिकॉज आपको लगता है कि आप आपको डांटेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, भले भले टीचर आपसे फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक होता परसेप्शन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब क्या बैरियर्स, ठीक है, कि कैसे बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। तो वो बैरियर क्या है, लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, तो समटाइम वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज द बैरियर्स दैट स्टॉप अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज, ठीक है। तो बैरियर क्या है वो हम देखते हैं वन बाय वन में। क्या, जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को अपनी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स बीच में आ सकते हैं, इट मे बी कम्स, ठीक है, जो आपके सेंडर के और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बैरियर हो सकते हैं या बाधा बन सकते हैं। तो वो क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कैसे बैरियर बन सकता है बेटा, जैसे कि इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी, okay, as well as Marathi as well. So if I'm trying to explain you in Marathi language, at that time you will not able to understand because you don't understand the Marathi language, okay. So language also makes a barrier, create a barrier to communicate. Suppose if you want to communicate your friend or Facebook friend which is related to the China and he knows only Chinese language, so at that time you are not able to communicate with that, okay, that person. This is called language perception या फिर language comes into the sender and receiver for affecting communication, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या है, विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज, ओके। फॉर एग्जांपल completing partially draw picture with visual person where they are maybe something else, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया कि आपको बांग्लादेश का नक्शा बनाना है, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ मैप ऑफ बांग्लादेश एंड यू डोंट नो, आपने कहीं पे पढ़ा है या कहीं पे देखा तो आपने, ठीक है, कुछ मिस्टेक करते हुए एक मैप तैयार कर दिया, बट दैट मैप इज नॉट ओके राइट, वो एक्चुअली में राइट नहीं था वो, लेकिन एक, तो यहां से आपने देखा कि विजुअली परसेप्शन आ जाता है जब आपने कुछ देखा होता है लेकिन आप उसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। या समटाइम्स यू मीट समवन, ठीक है, इफ एनीवन आस्क अबाउट दैट पर्सन हु इज ही और हु इज व्हाट, ठीक है, तो दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई वो सामने वाला जो जिससे हम मिले हैं वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल परसेप्शन आ सकता है। या सपोज आपको कुछ जैसा आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हैं और थोड़ा दूर पे क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है कि सपोज यू हैव टू टेक लेफ्ट फॉर दिल्ली और सम यू हैव टू टेक राइट फॉर समथिंग कानपुर और आगरा। तो आपने उसको समझा नहीं, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फॉर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेट क्लियरली। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, जैसे कि आपने कोई सपोज कोई शॉपकीपर इसने किसी को चीट किया, मतलब उसने कम सामान दिया और आपसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो लेट मे बी केयरफुल, ओके। आई scored low marks in my math exam so I am scared to ask answer a question in a class। suppose आपने कुछ आपके जो मार्क्स थे मैथ्स के वो कम आए थे, तो इस वजह से आपने सामने वाले टीचर से कोई भी क्वेरी नहीं की अबाउट द आंसर। तो यहाँ पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस एक फैक्टर आता है जो कि आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब आता है प्रीजजेस। प्रीजजेस का मतलब fixed ideas such as thinking, okay, no one is in my class like me। अगर आपने ये प्रीजज कर लिया कि आपकी तरह कोई क्लास में है ही नहीं है, एंड मे स्टॉप अ स्टूडेंट फॉर कम्युनिकेटिंग ओपनली इन अ क्लास, इस तरह से आपने बात करना बंद कर दिया किसी से, तो इसका मतलब क्या, आपने क्या किया, आपने आपको प्रीजज कर लिया कि you are the only student, you are the only student in class who got above 90%, okay, above 90%. So it is not done by the student, okay, it also affect your what,
the communication, okay, to the teachers or class teachers or students or friends also, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स में क्या है, फीलिंग्स में क्या आता है देखिए, फीलिंग्स का मतलब अवर फीलिंग एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्टिंग समटाइम्स इन अ क्लासरूम, ठीक है, टीचर्स आर टीचिंग and you are not able to understand because you are not what concentrating because the subject is not interesting or some subject is not interesting, so that time you are not able to understand, that communication is break now feeling comes there. Now other person affect communication, for example I am not feeling well therefore I don't want to talk, sometimes हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस समय आप क्या किसी और से बात करने के इच्छुक नहीं है, तो वहां पर कम्युनिकेशन क्या होता है, अफेक्ट होता है। एनवायरमेंट, नॉइजी और डिस्टर्बेंस, इसका मतलब सपोज यू आर इन अ क्राउडी प्लेस, you are in a crowded place, now you are not able to listen if anyone calls you, right? In that time environment also affect the communication. Now next one is personal factors. Personal factor का मतलब include your own feelings, habit and ways of thinking. For example fear and low confidence may make communication डिफिकल्ट। जैसे सपोज आपके सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर से आप कोई क्वेरी नहीं करते, आप कुछ नहीं पूछते उनसे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डरते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दैट इज पर्सनल फैक्टर, ठीक है। क्या अगर आप पूछेंगे तो टीचर कहीं डांटे ना या कुछ बोले ना, इस वजह से आप पूछते नहीं। अब आता है नेक्स्ट थिंग कल्चर, साइन which have a different meaning of different cultures such as showing a thumb impression, good job done for some people and but maybe insulting to others। ये होता है कि जब हम किसी को थंब इंप्रेशन दिखाते हैं तो इसको तो अच्छा माना जाता है कि यू डिड वेल, बट समटाइम्स इट इज शोइंग इंसल्टिंग अदर्स। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। सिमिलरली अब हम यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई ऐसे वो कौन से बैरियर्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं या फिर उसको अंदर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाला है वो है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। अब वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, लेट्स सी। देखिए बेटा, तो हम वो फैक्टर्स देखने वाले हैं, वो फैक्टर देखने वाले हैं जो कि आपको आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो क्या है कंसेप्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज कैन बी एब्रीवेटेड एज 7 C's। इसको क्या बोलते हैं, 7 C's। ये आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कंक्रीट, चौथा है करेक्ट, पांचवा है कोहेरेंट, छठा है कंप्लीट एंड लास्ट वन है कर्टियस। तो ये हमारे जो 7 C's हैं ये आपको हेल्प करते हैं फॉर गुड कम्युनिकेशन और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्लियर है। क्लियर का मतलब क्या है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, मींस आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको सपोज किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको कोई स्टेज पर आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको स्पीच देनी है, तो उस समय आपको उस टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि आपके थ्रू कोई भी इनवैलिड या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं जाए। दूसरा होता है हमारा कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। इसका मतलब क्या, आप अपने कम्युनिकेशन में जो भी शब्दों का यूज करेंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे, सरल होंगे, जिसे सामने वाला आसानी से वो समझ सके। इसका मतलब क्या, आप कोई भी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे जिसके लिए सामने वाले को डिक्शनरी का यूज करना पड़े, ठीक है। तो आप यूज करेंगे सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड, जो भी आपको बोलना बस वही बोलिए आप, ठीक है, या वही आप कम्युनिकेट करिए। कॉन्क्रीट का मतलब यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज। इसके पहले हमें सिंपल वर्ड यूज करना है, लेकिन जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, वो आपको यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज टू कम्युनिकेट अदर्स। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसका मतलब क्या है, इफ you are not able to speak well, it means your grammar, your language, your word meaning is very not good, ठीक है, is very not good, or you have short of words, so you have to practice to speak well,
ठीक है, यूजिंग ग्रामर एंड लैंग्वेजेस ऑल्सो, ओके। और यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्ड पावर टू स्पीक इन पब्लिक और स्पीक विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, ओके, एंड यूज करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। नेक्स्ट हमारा है कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। नाउ कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। सपोज आपको कुछ मैसेज देना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना है, तो वो कंप्लीट मैसेज आप दें। ऐसा ना कोई पार्शियल मैसेज है, जैसे कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिली स्कूल की तरफ से और आपको आपके फ्रेंड को देना है जो कि आज एब्सेंट है। अब आपको स्कूल की इंफॉर्मेशन क्या मिली है, फ्रॉम द 30th अगस्त और 30th अगस्त योर स्कूल पीरियोडिक टेस्ट 1 विल स्टार्ट, ओके, एंड देन फर्स्ट टेस्ट विल बी इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जो टेस्ट है वो सबसे पहला होगा। आपने अपने फ्रेंड को आपने मैसेज दिया कि फ्रॉम द 30th दिस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट और पीरियोडिक टेस्ट विल स्टार्ट, बट आपने जो सेकंड इंफॉर्मेशन थी कि आपका पहला एग्जाम क्या होगा इंग्लिश का, वो आपने नहीं दी। इट मींस आपने इसको पार्शियल इंफॉर्मेशन दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कंप्लीट मैसेज आपको दे। अब आता है कर्टियस। कर्टियस मतलब बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड हैं, आपके जो शब्द हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में लिखे होने चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स कि भाई वो हमारे एल्डर्स हैं या हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं या हमारे फैमिली पर्सन है, ठीक है, या हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है। यू हैव टू ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ देम, ठीक है, आपको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो 7 C's हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके बेटा। तो आज के लिए मैं यहीं पर इसको वाइंड अप करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो टुडे आई वाइंड अप माय क्लास हियर, ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ एंड you have to complete the exercise, okay, so you have to complete the exercise. So I'm going to tell you which exercise you have to complete, okay. So you have to come the exercise like this, you have to note it down, wait a moment, okay. So this is your first exercise, okay, you can note it down. This is only MCQs, so you have to choose only one right answer, ठीक है। Now MCQs, this is a match the columns, you have to match the columns, okay, and in the end short answer questions, so you have to answer. This is your homework for communication chapter, okay, this is your homework for communication chapter, ठीक है। So what you complete today you complete identify the element of communication, draw a communication cycle showing all the element of communication and identify the factor affecting our perspective in communication। तो हमने ये सब चीजें आज कंप्लीट की बेटा। So I hope you like my lecture, okay. So subscribe my channel for latest video, okay. As soon as when I upload my videos you can get notification for it, okay student. So subscribe my video first, okay. So here I am wind up and thank you student for watching it.